Greetings everyone. So, children, this is the second part of the chapter Weather, Climate and Adaptation of class 7. And in my previous chapter, I've already told you about what is climate, what is adaptation, and of course, you are able to differentiate between the two. Yes or no? So let us study now about how do the animals and the plants in these particular regions survive, especially the animals, right? So for that we need to know the meaning of the word adaptation, right? Now what is adaptation? Yes, the characters, the living things that they develop which helps them to survive in extreme conditions or in any condition, है ना. We have different climatic conditions because of the different geographical condition, isn't it? So because of that, different environmental climatic conditions are there. So animals and plants, they develop different features in their body which helps them to survive in these atmosphere. So children, we'll take two regions here. We'll take the polar region and we'll definitely take the another tropical rainforest. So let us begin with the polar region. Polar region matlab world or the earth has two poles, north pole and the south pole, isn't it? And we know it Arctic and Antarctic, we call it that. And it is throughout the year there is snow, there is glacier, isn't it? आपने भी देखा होगा, है ना. तो what are the common animals found there? You have seen polar bear, seal, penguins, reindeers, fox, etc. Rabbits, very hairy rabbits and all. So children, we are going to study about adaptation in polar regions. So let us know more about polar region. Throughout the year it is extremely cold, snow is there, and on the poles of the earth 6 months there is no sunrise, and 6 months there is sun, है ना. तो very difficult conditions, and during the winters the temperature goes up to -37, -40, even -44 degrees centigrade. Yeah, such low temperatures. Okay. So what happens in those low temperatures? It is very difficult to survive. So what do animals do? Let us study about it. What do animals do in the polar region? And especially we are going to talk about the penguins and the polar bear. You all have seen the polar bear. Polar bear is white in color, isn't it? And let us study the features of the polar bear. I have already shown you a video. Now we'll study the features one by one. So the first feature is that the white fur is not easily visible, है ना. it has white fur. तो क्या होता है, वाइट फर इसको कैमोफ्लेज कर देता है. आगे चढ़ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको कैमोफ्लेज में और डिटेल में समझाऊंगी. कैमोफ्लेजिंग मतलब मिक्सिंग और ब्लेंडिंग विथ योर एनवायरनमेंट. ओके. सो पोलर बेयर क्या करता है, इट ईजिली गेट्स ब्लेंड so that its predators cannot see it, and it becomes a very nice predator itself, so that it can easily hunt the animals and seal, etc., those who are resting on the snow, right? So then next it has two thick layers of fur. फर की दो लेयर होती हैं जो कि एक्चुअली इंसुलेटर बन जाती है ना, उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है. तो इट प्रोटेक्ट्स द पोलर बेयर फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन. नेक्स्ट चिल्ड्रन, द फैट इंसुलेट्स. इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, जिसको आप बोलते हो ना ब्लैक स्किन यू पीपल, सम ऑफ यू डू. सो ये जो थिक लेयर ऑफ फैट है इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू. एंड ये एडिपोज टिश्यू वर्क्स लाइक एन इंसुलेटर. जो थिक लेयर ऑफ फैट है, इट वर्क्स एज एन इंसुलेटर. इट कीप्स द बॉडी हीट इनसाइड द पोलर बेयर,
and it doesn't allow the body heat to leave the polar bear, keeps it warm, and also it does not allow the outside cold to come inside the body of the polar bear and make it feel cool, right? Then polar bears have a very strong sense of smell. बहुत दूर से ही वो पहचान लेंगे कि ओके देर इज़ अ प्रे, देर इज़ अ शिकार, सो दे कैन easily go and locate their prey. And lastly, it has a long, curved, and sharp claws. What will it help? You must have seen people slip a lot when it is snow, है ना? स्नो में लोग बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पोलर बेयर कैन नॉट अफोर्ड टू कीप ऑन स्लिपिंग, येस और नो? आपको लगता है क्या पोलर बेयर गिरता चलेगा स्नो में? नहीं ना। तो ये अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए आइस के ऊपर में its claws are curved, right? So it can walk easily in the snow or ice, right? Next animal that we are going to take is this very favorite. इन पे मूवीज़ भी बनी हैं हॉलीवुड में, एंड देर आर वेरी नॉटी पेंगुइन्स, 4 पेंगुइन्स इन मेडागास्कर मूवी, वेरी नॉटी वंस, है ना? सो लुक एट देम, दे बच्चों का भी एक सीरियल आता था, पिंगू पिंगू, है ना? पिंगू नाम का एक सीरियल आता था. सो दैट इज़ द पेंगुइन. पेंगुइन्स, they can survive only in the extremely cold atmosphere, and that is why they are found in the polar regions. आपने देखा होगा penguins never live alone, they always live in huge groups or herds, right? So and they are always huddled together. वो क्यों huddle करे रहते हैं? ताकि जब आप जाड़ों में एक रूम में 10 लोग भी बैठो तो आपको ठंडक नहीं लगती ना, आपको सट के बैठना अच्छा लगता है क्योंकि आपको वार्मथ मिलती है. तो इन दीज एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर, राइट? दे आर ऑल्सो वाइट इन कलर, हाँ, सो दैट दे कैन ऑल्सो ब्लेंड इन द एटमोसफियर. देन दे ऑल्सो हैव 2 layers ऑफ फर, और इनके जो फर होते हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं. तभी आपने देखा होगा पेंगुइन्स लाइक पोलर बेयर, penguins are also extremely good swimmers. They swim in water, they dive in water, they catch the fish, and that is their food basically, right? So penguins also can swim in water, 2 layers of fur, waterproof. And for swimming, what is there? Look at their feet. The penguins' feet are actually webbed so that they can easily swim, right? So children, these animals adapt, right? But there are some animals which cannot adapt. What do? They migrate, है ना? आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, है ना? और भरतपुर राजस्थान में तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही है विच इज़ वेरी फेमस फॉर द माइग्रेटरी. Bharatpur bird sanctuary we call it. It is very much famous. Even in our city Prayagraj or Allahabad on the Sangam, you must have seen that these Siberian birds, they come in the month of October, November, and they remain in Allahabad up to March, when it is the weather is very cold for Allahabad, not for them. तो ये 6 months जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है पोलर रीजन्स पे, दे माइग्रेट टू वेरियस प्लेसेस और दे ट्रैवल अप टू 15,000 kilometers. इमेजिन. एंड दे डोंट हैव एनी मैप, दे डोंट हैव एनी कंप्यूटर टू असिस्ट, दे डू नॉट हैव GPS. तो आपको लगता नहीं इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ डू दे ट्रैवल सो फार? So it is said that they come to know about the directions through the positions of the stars and planets, position of the the celestial bodies. ऐसा भी कहते हैं कि इनकी चोंच में अर्थ के पोलर रीजन से, मैग्नेटिक रीजन से कुछ कोऑर्डिनेशन होता है which is there in their beak, and that is how they decide their path. So every year thousands of birds they migrate from one place to another, क्योंकि वो उतने अडेप्टेशन अपने अंदर नहीं ला पाते हैं, है ना? फिश होती हैं वो भी पानी में माइग्रेट करके स्विम करते हुए दूसरी तरफ चली जाती हैं.
बट मैमल्स और बड़े एनिमल्स वो माइग्रेट नहीं कर पाते, तो वो अडेप्ट करते हैं, वो अपनी बॉडी में ऐसे फीचर्स डेवलप कर देते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाएँ। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन। ओहो, ट्रॉपिकल रीजन फुल ऑफ एनिमल्स, फुल ऑफ प्लांट्स। क्यों भाई, वाई? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में एक तो वेदर बड़ा ही ह्यूमिड है, हमेशा बारिश होती रहती है, पूरे साल लगभग एक जैसा वेदर रहता है। मिनिमम जाएगा भी तो भी 15 डिग्री से ऊपर ही रहेगा, मैक्सिमम जाएगा तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये वेदर जो होता है ये बड़ा ही फेवरेबल वेदर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ animals and birds and plants, they are found in the tropical rainforest. Rainforest नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, उसकी वजह से बड़े घने जंगल होते हैं। घने जंगल हैं तो बहुत तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट सब मिलेंगे। अगर बहुत तरीके के एनिमल्स मिलेंगे तो क्या होगा, फाइट फॉर फूड भी होगा, है ना। तो अलग अलग एनिमल ने अपनी अलग अलग फूड हैबिट डेवलप कर ली है और सर्वाइवल स्किल्स कर लिए हैं ताकि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अडेप्ट कर सकें। इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है? इंडिया में आपका वेस्टर्न घाट्स पूरा का पूरा इट्स वेरी रेनी, एंड ईस्टर्न इंडिया जो आपका आसाम की तरफ का एरिया है, टेरेन्स हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, सुंदरबंस वगैरह हो गए, है ना। यहाँ पर पॉपुलेशन एनिमल्स की बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वेदर बड़ा फेवरेबल है, इट्स हॉट, ह्यूमिड एंड सल्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट एनिमल आपको दिख रहा है रेड आई फ्रॉग। इसमें क्या होता है आप देखिए, एक तो ये ऐसा है कि ये थोड़ा सा डरावना लगता है, तो दूसरे एनिमल्स और स्पेशली प्रेडेटर्स इससे दूरी रखते हैं कि पता नहीं क्या है ये। दूसरा, इसका कलर ऐसा है कि ये लीव्स में मर्ज हो जाता है ना, और इसके स्टिकी पॉज होते हैं सो दैट इट कैन ईजिली क्लाइंब ऑन द ट्रीज। तो नीचे से जब ऊपर आ गया तो ऑफकोर्स ये प्रेडेटर से दूर आ गया, है ना। दूसरा हमारा एनिमल है मंकीज़। ओहो, मंकी तो बहुत मिलते हैं फॉरेस्ट में, है ना। क्या काम होता है जी इन मंकीज़ का? मंकीज़ बेसिकली दे फीड ऑन वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स, है ना। वो पत्तियाँ भी खाते हैं, वो आपके फ्रूट्स भी खाते हैं, वो बार्क में छुपे हुए इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ठीक है, तो मंकीज़ की आपने देखा होगा टेल बड़ी लॉन्ग होती है ना, एंड विद दैट टेल एक्चुअली इट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ऑन दी ट्रीज़। तो मंकीज़ क्योंकि ट्री पे रहते हैं इसलिए इनके हैबिटेट को हम लोग बोलते हैं आर्बोरियल हैबिटेट, ARBOREAL, आर्बोरियल हैबिटेट। ठीक है, which so their long tail actually help them to survive on the trees. ये basically they live on the trees. फिर आप देखिए दो एनिमल्स यहाँ पे दिखाएं। एक तो टूकन बर्ड है। अब टूकन बर्ड की ज़रा आप बीक देख लो, है ना, इसकी बीक बहुत लंबी होती है। तो ये भी बेटा एक अडेप्टिव फीचर्स है। क्या फीचर है ये? कि बहुत सारी पेड़ों की डालियाँ बड़ी पतली और वीक होती हैं, है ना। तो अगर एनिमल्स डरते हैं कि उस पर बैठेंगे तो टूट जाएंगे, तो टूकन की लंबी बीक का क्या फ़ायदा हुआ कि ये बैठेगा दूसरी मजबूत ब्रांच पे और वीक ब्रांच का फ्रूट भी तोड़ के खा लेगा। तो इसने अपने लिए ऐसा अडेप्टेशन करा है कि जो फ्रूट्स बाकियों को नहीं मिल पाएंगे वो इसको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे अडेप्टिव फीचर्स हैं। ठीक है, फिर आपका आता है लायन टेल्ड मकाक या सिल्वर मेन मंकी भी बोलते हैं। इसकी टेल थोड़ी लायन जैसी होती है, तो अगर ये बैठा रहता है तो लोगों को लगता है क्या पता उधर पे लायन है, इसीलिए इसको लायन टेल्ड कहते हैं। तो अपने आप को ये प्रेडेटर्स से सेव कर लेता है। और इसका मेन देखो, है ना, इसकी मेन सिल्वर मेन जो होती है वो भी, इसको फेस के चारों ओर सिल्वर हेयर होता है, वाइट हेयर, तो लगता है कि जैसे लायन ही शायद छुपा हुआ है ना, थोड़ा सा इस तरह का लुक होता है। देन यू हैव टाइगर्स एंड लायंस, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि कैमोफ्लेज कर देते हैं।
तो कैमोफ्लेज का क्या मतलब है कि आप अपने चारों ओर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जेल कर जा रहे हैं, सेम कलर हो जा रहा है। तो सेम कलर का क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको मतलब प्रेडेटर को लगेगा ही नहीं कि इंसेक्ट छुपा हुआ है वहाँ पे या कोई एनिमल है, प्रे छुपा हुआ है। और प्रेडेटर्स को क्या फ़ायदा है, आप देखिए लायन टाइगर जो होते हैं ये टॉल ग्रास में रहना बड़ा पसंद करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो एक्चुअली ब्लेंड कर जाती है, ठीक है। तो लायन टेल ये लायंस एंड टाइगर्स दे अडेप्ट लाइक दैट, ठीक है। कैमोफ्लेज कर जाते हैं, इनके बॉडी का कलर जो होता है वो इनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की तरह ही हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट एनिमल हमारे पास है द किंग ऑफ जंगल। तो राजा एलिफेंट को नहीं बोलते हैं, लायन को बोलते हैं, बट एलिफेंट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड लायंस एंड टाइगर्स डू नॉट मेस विद देम, है ना। आपने बहुत सारी मूवीज़ में लायन किंग में भी देखा होगा एलिफेंट्स का रोल क्या होता है फॉरेस्ट में। तो एलिफेंट्स जो होते हैं इनको फूड बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। और इसलिए इनकी सेंसेस का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एलिफेंट्स की जो टस्क होती है इट्स अ वेरी लॉन्ग नोज, है ना, एंड इट हेल्प्स देम टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल पावर so that they are vegetarians, so they can locate the fragrance of some fruits or the forest area of the forest जहाँ पे बहुत सारे fruits वगैरह हों। जो इनके टस्क होते हैं, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, वो एक्चुअली मॉडिफाइड टीथ हैं। हाथ तो नहीं है इनके, लेकिन इनको खाना ज़्यादा चाहिए। तो टस्क किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स देम टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज। एलिफेंट बार्क भी खाता है, जब उसको खाने को नहीं मिलता है तो जो सॉफ्ट बार्क होती है, मुलायम बार्क होती है, दे कैन हेल्प टू टीयर इट विद द हेल्प ऑफ देयर टस्क एंड दे कैन ईट इट, राइट। अच्छा, इनकी जो हियरिंग पावर होती है, इतने बड़े बड़े कान हैं तो हियरिंग पावर भी बड़ी स्ट्रांग होती है ना। तो उसके अलावा इतने बड़े कान का क्या फ़ायदा हुआ कि एलिफेंट की बॉडी बहुत ह्यूज है एंड इट वॉक्स अ लॉट। तो आप क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जब बारिश नहीं हो रही है तो इट इज़ वेरी ह्यूमिड एंड हॉट, है ना। इतना बड़ा बॉडी है, एसी और फैन तो है नहीं एलिफेंट के पास, तो इट मे स्टार्ट फीलिंग वेरी हॉट। तो ये आपने देखा होगा अपने कान ऐसे ऐसे हिलाता रहता है। तो कान हिलाने का क्या फ़ायदा हुआ कि इट हेल्प्स टू कूल इट्स बॉडी, राइट। So that is one more advantage of these very big ears of the elephant, that it helps the elephant to cool down its body. So this is also a kind of adaptation, right children? So this is all about this chapter, and any question you can always ask in the comment section. Any doubts, any of your examples, you can always ask it there, okay?